Okay, beta. So we are going to start from ideal gases. This is the last topic that we have to do. We will be studying about mole. Everyone knows about mole. Mole is the amount of substance having Avogadro's number of particles, right? Then we'll be looking upon equation of state, and before that we'll be looking upon kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases, it resembles to that IGCSE KMT. It states that this theory states that matter consists of small particles which are set in continuous random motion, and then few assumptions related to kinetic theory of gases, and then few calculations about pressure, volume, and temperature for the gases. Like few of them you're already familiar with: Boyle's law, PV is constant, then Charles' law, V over T is constant, then pressure, there is pressure temperature law, right? Pressure is directly proportional to temperature. तो ये जो है, you are familiar with these. Few of equations are new into that, which is this: PV is 1 by 3 nm c square. P is pressure, V is volume, N is number of particles, M is mass of one particle, and C square is mean square speed of the gas particles. Okay, so then there will be second new equation, product of pressure and volume, is NKT. N is number of particles, K is Boltzmann constant, and T is thermodynamic temperature in Kelvin. Okay, so let's start from the first thing, that is assumption of an ideal gas according to kinetic theory of gases. Okay, so if you remember, the few assumptions about kinetic theory of gases was that gases consist of large number of particles which are set in continuous random motion, and there is negligible attractive forces or bonding between the gas particles, and they are moving all the time, and then their temperature and then they are like A2 वाले हैं ये, हाँ जी. Okay, so the first point in the assumption is gas molecules are in continuous random motion. We already know this. Second, they move in straight line. Move in straight line means that they are not moving along zigzag or circular path. They always move along straight line, but they encounter collision with other particles and then they change their direction. But they always keep moving along straight line. So molecules have negligible intermolecular forces of attraction. This is for normal gases. For ideal gases, it is zero. So we say that for ideal gases, the attractive forces is perfectly zero. So for ideal gas, the molecular potential energy is zero. It means that there is no bonding at all inside ideal gases. Next, the gas molecules behave as hard elastic spheres. It means their shape cannot be changed, right? Their shape, whatever collision they are encountering, their shape remains the same. Then the collision between the molecules are perfectly elastic. It means that no loss of energy, no loss of kinetic energy. These are the direct points, but they can ask you indirectly about that which assumption tells us that the kinetic energy of the particles doesn't change, it always remains the same. So you say that the collision between the particles and the collision between particles and walls of the container are perfectly elastic, right? Okay, so next thing, time of collision is negligible compared to time between the collision. Time between collision is negligible as compared to time, you can say, we can rephrase it. Time during the collision is negligible as compared to time with next collision. And what does this mean? This means large spaces between particles. अच्छा, इस assumption से ये पता लगता है कि भाई जो गैस है ना, उसकी density बहुत low होती है. They can ask you in the tricky way कि अच्छा, which assumption tells us that density of gas is low? तो हम कहेंगे भाई ये वाला assumption है कि time for collision, time during collision is very short
एज कम्पेयर टू टाइम फॉर नेक्स्ट कोलिजन। नेक्स्ट कोलिजन का मतलब है वो दूसरे पार्टिकल के साथ हिट करने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो थिंक अबाउट इट, क्यों ज़्यादा टाइम लेगा? बिकॉज देयर इज़ मोर स्पेस ओवर देयर और उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो इट मीन्स कि ऑल द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। इट मीन्स कि गैस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। Okay, seventh one is volume of gas molecule is negligible compared to volume of gas. Again, volume of gas molecules. If you find the volume of all the individual gas molecules and then you find the molecule of, volume of the whole gas, the volume of the whole gas is too much as compared to volume of individual gas particles. This resembles to volume of nucleus and volume of atom. Volume of nucleus is negligible, volume of atom is too much. And why is that? Because there are large empty spaces inside atom as well, जिसकी वजह से पूरे एटम की डेंसिटी बहुत लो होती है, राइट? और जो हैवीएस्ट पार्ट होता है एटम का वो न्यूक्लियस होता है, वो बहुत टाइनी होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस की डेंसिटी हाई होती है, एटम की डेंसिटी लो होती है। इन द सेम वे गैस पार्टिकल्स जो हैं अगर उनका वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो वो बहुत कम होता है। इससे क्या पता लगता है हमें? इससे ये पता लगता है कि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन, लार्ज गैप्स और स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये भी पता लगता है कि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में फिर बॉन्डिंग नहीं होती, कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में लार्ज स्पेस और एक कंटेनर में ही है तो क्यों है लार्ज स्पेस? क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है। अगर बॉन्डिंग होगी तो वो फिर क्लोज होते सारे, जैसा सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है इसलिए ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, राइट? ट्रांसपेरेंसी मीन्स, हाँ या बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। जाहिर है जब वो बहुत ज़्यादा बीच में गैप्स होंगे तो ऑफ कोर्स उसके अंदर से लाइट और बाकी चीज़ें पास कर सकेंगी, तो हम उसको ट्रांसपेरेंट फिर कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द लॉज, द गैस लॉज। सो वी गोइंग टू लुक अपॉन गैस लॉज। Gas laws are actually, what are gas laws if we want to define them? So we say it's the relation between pressure, volume and temperature for the gas. That's how we define gas laws. Acha. There are many gas laws, a few of them you're already aware of. So let's go through the first one, which is Boyle's law. Boyle's law provides the relation between pressure and volume of the gas, and it states that for a fixed mass of gas at constant, this is like for a fixed mass of gas at constant temperature. So two things are kept constant in Boyle's law. Number one, mass of the gas, and number two, temperature. क्योंकि ये दोनों भी प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अगर आप मास ज़्यादा कर दें प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा कर दें प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट्स वाई, क्योंकि हमें तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है, तो बाकी सब फैक्टर्स हमें कंट्रोल रखने हैं। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 1 ऑफ पेपर 5 एज वेल, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वो होता है विच कैन अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में से आपका वॉल्यूम जो है दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल and this pressure will be dependent variable. And what are other two factors that can affect pressure? One is mass, one is temperature. We have to keep them controlled, we have to keep them constant. So the statement is volume of gas is inversely proportional to its pressure, right? Its pressure, and of course these two are the parts of the same statement. So we'll be saying that for a fixed mass of gas at constant temperature, volume of gas is inversely proportional to its pressure. So volume and pressure inversely proportional, or pressure and volume inversely proportional, it's the same thing. And we can say product of pressure and volume is constant. And it's very simple thing, like this is the state 1 of the gas cylinder with one piece of load on it. Its pressure is P1, its volume is V1. Just multiply them, get the answer, and then add another weight on it, so that will compress the gas. So when it will compress the gas, obviously the volume decreases but pressure increases, but if you multiply them you get the same answer. So we say that product of pressure and volume always remains the same. So when this happens, then that thing become a law. ठीक है? तो that's why this is Boyle's law. हाँ एग्जैक्टली, AS केमिस्ट्री है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। जहाँ आपको लगा कि थोड़ी सी
चैलेंजिंग है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको मज़ीद और फर्दर एलेबोरेट कर दूंगा, अदरवाइज दिस इज़ सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ के हाउ प्रेशर, ये भी ओ लेवल्स का बहुत कॉमन फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, हाउ प्रेशर चेंजेस, और वो सम टाइम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी बताते हैं कि व्हेन यू डिक्रीज द वॉल्यूम देन द मॉलिक्यूल्स गेट क्लोजर टू द वॉल्स एंड देयर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, and when the molecule collide with the walls of the container it its momentum changes, and we know that change in momentum over time is force, so that's how a force is exerted on the walls of container, and then total force exerted by all the particles on the wall per unit area of the wall is called gas pressure. So that's how a gas exerts pressure. ये ओ लेवल का क्वेश्चन है जो यहाँ भी पूछ सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग इज के देखो, जब वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विद वॉल्स इंक्रीजेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, सेम थिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड। ओके, सो दिस इज द ग्राफ, this is the graph between pressure and volume. So we know that pressure and volume are inversely proportional, so whenever inverse proportion is there, so we always have negative gradient exponential graphs, negative gradient exponential curves. So that's how we can plot it. I have plotted two curves. The first curve is at temperature T1, the other curve is at temperature T2, and T2 is higher than T1. What does that mean? कि भाई if you keep the temperature high ना, temperature आपने constant रखना है, अगर आप higher constant रखते हैं तो आपकी line थोड़ी steeper होती जाएगी, right? Sorry, linear होती जाएगी, not steeper. If the temperature is low, then your line would be more steeper. बट इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई, इससे भी हाई करोगे तो फिर आपकी ये लाइन और स्टीपर हो जाएगी, T3. सो T3 इज़ हायर दैन T2 इज़ हायर दैन T1. और इसका एक और भी होगा कि what will happen कि at same value you will have, at same temperature you will have bigger value of product of pressure and volume. Let's say for T1 अगर हम ये देखते हैं कि ये वाला वॉल्यूम था और इस पर ये टेम्परेचर T1 पर है और ये प्रेशर है, तो इन दोनों का आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया P1 इंटू V। इसी तरह अगर आपने इसी वॉल्यूम पर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो ये प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे प्रेशर हाई होता है। तो अब आप इस P2 को जब V से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट बिगर आंसर। सो इट मीन्स ये भी वो 1 मार्क की चीज़ पूछता है कि अच्छा आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो हाउ टेम्परेचर इज़ गोइंग टू अफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो वी विल से कि भाई अगर टेम्परेचर इज़ लो तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी, उसकी वैल्यू भी लोअर होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन लो टेम्परेचर पे प्रेशर जो लो होगा, राइट? और अगर आप सेम वॉल्यूम पे जो है टेम्परेचर हाई कांस्टेंट रखते हो, तो जब हाई कांस्टेंट टेम्परेचर होएगा तो प्रेशर ज़्यादा होएगा वहाँ पर, ज़ाहिर है पार्टिकल्स विल बी मूविंग फास्टर। तो जब प्रेशर हाई होगा तो इसका मतलब है कि फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी हाई होगा। तो समिंग इट अप, at high constant temperature, product of pressure and volume at any volume reading is always high, right? Okay, next is Charles' law. Charles' law tells us the relation between volume and temperature. This is the statement. When we study relation between two, we keep the third one constant. So there are only 3 things in the gas laws: pressure, volume and temperature. So let's say if we are studying volume and temperature, so we are keeping pressure constant. ठीक है? So Charles' law क्या है जी? For a fixed mass of gas at constant pressure, you're keeping mass and pressure constant. Volume is directly proportional to temperature. This is quite simple. Volume directly proportional to temperature. अब इसको constant में करेंगे, volume is constant into T, constant is K, और V over T is constant, and then you can apply the same thing. V1 over T1 is V2 over T2. This is Charles' law. So these are very important because इससे related questions भी आते हैं। Although ये O levels base है, जिस तरह Boyle's law था P1 V1 is equal to P2 V2, Charles' law है V1 over T1 is V2 over T2. V1 is the first volume at temperature T1, V2 is the new volume at temperature T2. And remember, we always use temperature in Kelvin. यहाँ पे हम Kelvin में यूज़ करेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, अगर दोनों तरफ
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फिर इट्स फाइन, फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप बेशक डिग्री सेल्सियस में यूज़ करो. ओके, अगेन द ग्राफ. You know that V and T are directly proportional. So if you plot a graph between V and T, the graph would end up with a straight line passing through origin. टेम्परेचर केल्विन में लिया है तो आपने ये देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है. डॉटेड लाइन क्यों है? वाई इट इज़ डॉटेड लाइन नॉट अ सॉलिड लाइन? क्योंकि 0 केल्विन पे जाना मुश्किल होता है ना. वी कैन अप्रोच क्लोजर टू 0 केल्विन बट नॉट एग्जैक्टली 0 केल्विन. दैट्स वाई ये ग्राफ इस तरह का है. अगर बेटा यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में लें, क्योंकि हम तो नॉर्मल डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, और इसको इस तरह लें तो फिर जो हमारा ग्राफ होएगा ना वो तकरीबन ऐसा होएगा. ठीक है, और इसको हम आगे यहाँ लेके जा सकते हैं. तो आप इसको यू विल ब्रिंग दिस बैक, वापस आओगे तो लेट्स से हम कहेंगे भाई ये -273.15 है जो कि 0 केल्विन के इक्वल होता है. राइट, तो इसमें इसका वाई इंटरसेप्ट होगा. ये याद रखना है कि अगर डिग्री सेल्सियस है तो वाई इंटरसेप्ट होगा, और अगर यहाँ केल्विन है तो फिर वो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा. राइट, लेकिन डॉटेड लाइन आपने बनानी. अच्छा, अगेन ये 2 वैल्यूज़ क्यों हैं, P1 P2? अगेन द सेम थिंग, टेम्परेचर मैटर्स एवरीवेयर. अगर लो टेम्परेचर है तो वो फिर लेस स्टीप होगा, और हाई टेम्परेचर है तो मोर स्टीप ग्राफ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है प्रेशर हाई टेम्परेचर पे प्रेशर ज़्यादा होगा. फाद P2 ऊपर क्यों है? क्योंकि भाई हाई टेम्परेचर है. हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर गैस का ऑलरेडी ज़्यादा है. जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो उसका जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग विच इज़ एवोगाड्रोस लॉ. अच्छा, जो लोग लेट आए हैं बेटा, हम लोग ये थर्मल फिजिक्स में हमने आइडियल गैसेस पढ़ा है. ठीक है, ये वाले जो सेम नोट्स हैं ये मैं एज इट इज़ आपसे ग्रुप में शेयर कर लूँगा. ठीक है, अभी जस्ट आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू करते हैं इसमें से. हाँ, कहीं पे कोई लिखने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेनेशन या फार्मूला हुआ या प्रैक्टिस, वो आप लिख सकते हैं. एवोगाड्रोस लॉ. अच्छा, एवोगाड्रोस लॉ इज़ द थर्ड लॉ. फर्स्ट वी स्टडीड pressure volume, second we studied volume temperature which was Charles law. अब Avogadro's law है. So this is the relation between volume of gas and number of moles or number of particles, क्योंकि Avogadro deals with number of particles or number of moles. So for a gas at constant temperature and pressure, like अगर आपने उसका temperature भी constant रखना है, pressure भी constant रखना है, दोनों नहीं change होने चाहिए. Volume of gas is directly proportional to number of moles. Number of moles can be number of particles. ये भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा तो V proportional to N है. Quite obvious. जैसे अगर आप ज़्यादा गैस फिल इन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम जो है उस ऑब्जेक्ट का बढ़ जाता है. जिस तरह टायर देख लें, फुटबॉल देख लें, उसमें जब प्रेशर हाई करते हैं, मोर वी पंप मोर एयर, तो उससे क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. बैलून देखें, बैलून के अंदर यू पंप मोर एयर तो उसका जो एरिया है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, ओके. सो वी अगेन V इज़ K N, K इज़ कॉन्स्टेंट, V ओवर N इज़ कॉन्स्टेंट. तो फिर वहाँ से हम वो इसको भी कर लेते हैं, V1 ओवर N1 इज़ V2 ओवर N2. सेम, मतलब तीनों में एक सिंक्रेनी है. P1 V1 इज़ P2 V2, V1 ओवर T1 इज़ V2 ओवर T2, और यहाँ V1 ओवर N1 इज़ V2 ओवर N2. ओके, now let's move on to ideal gas equation. Before we go to ideal gas equation, what is ideal gas? Like how we define ideal gas? So we can define ideal gas over here. Ideal gas is any gas that obeys all the gas laws. What is this? PV is nRT or PV is nKT. These are all the gas laws. So we can write here all gas laws. जो भी gas laws हैं, Boyle's law है, Charles law, Avogadro's law, any gas law. So an ideal gas के 2 features होते हैं. It is the one which is not having molecular potential energy, no bonding between the gas particles. All gas particles are independent, free to move. ठीक है, उनकी कोई अट्रैक्शन, कोई बॉन्ड नहीं होता अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ. एक तो ये इसका फीचर है. सेकेंड फीचर इसका ये है कि ये जो आइडियल गैस है, ये जितने भी गैस लॉज हैं सबको फुली ओबे करती है. मतलब बॉयज़ लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी, एवरी लॉ. लेकिन इसमें अंडर एनी कंडीशन, अंडर ऑल कंडीशन, मतलब ये ऑल कंडीशन का मतलब ये है कि देखो जो आपका है ना लेट्स से एवोगाड्रोस लॉ, इसमें आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है, राइट.
लेकिन उसमें आइडियल गैस में ये कंडीशन नहीं होएगी। आप जो मर्जी कंडीशंस को चेंज कर दो, उसने उस लॉ को हर सूरत में ओबे करना है। तो रियल गैस जो होती है वो कंडीशन वाइज होती है कि एक रियल गैस है हाइड्रोजन, उसने अगर लेट से बॉयज़ लॉ को ओबे करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे बॉयज़ लॉ नहीं ओबे होगा। लेकिन जो आइडियल गैस है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप कोई भी टेम्परेचर रख दो, कोई भी एनी टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, जो मर्जी रख दो, वो गैस जो है वो इस बॉयल्स लॉ को ओबे करेगी। इधर उसकी टेम्परेचर की एक रेंज होती है नॉर्मल गैसेस के लिए कि भाई इस रेंज में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना, अदरवाइज गैस आपका बॉयल्स लॉ ओबे नहीं करेगी, राइट। सो नॉर्मल गैसेस ओबेज लॉज अंडर सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, लेकिन जो आइडियल गैस है उसके लिए वो कंडीशंस बहुत वाइड होती हैं। मतलब उसमें किसी भी टेम्परेचर, बहुत हाईएस्ट हो बहुत लोएस्ट हो, आइडियल गैस जो है वो उस लॉ को जो है वो ओबे करेगी। सो डेफिनेशन इज एनी गैस दैट ओबेज ऑल द गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड आइडियल गैस। अच्छा, अब हमने आइडियल गैस की इक्वेशन बनानी है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन जो है बेटा वो कैसे बनती है, इसमें हम वो जो हमने तीनों गैस लॉज लिखे थे ना, वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीनों गैस लॉज है ना, ये वाला बॉयज़ लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है और ये जो है ये एवोगैड्रोस लॉ है। इन तीनों में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम को एक रख लेंगे और बाकी जो तीनों चीज़ें हैं उसको एक साथ लिख लेंगे, एन टी ओवर पी। ठीक है, समझ आ रही है, एन टी ओवर पी। ये जो एन और टी थे इन दोनों को हमने इधर लिख लिया और डिवाइडेड बाय पी था तो पी यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका एक कांस्टेंट लिखना है, एक स्टेप शॉर्ट है तो मैं वो स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स से v इज इक्वल टू कांस्टेंट एन टी ओवर पी। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये यहाँ पे आपके पास r है, r को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 8.314 पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू होती है जो डाटा बुकलेट में गिवन होती है, राइट। सो r इज़ द कांस्टेंट। अब यहाँ से आप रीअरेंज करो, p को उधर भेज दो, p वहाँ चला गया तो pv इज nRT। सो दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। Ideal gas equation is product of pressure and volume of ideal gas is always equal to product of number of moles, universal gas constant and its thermodynamic temperature. PV is nRT. This n is small n. अच्छा, अब ये जो वैल्यू है मोलर गैस कांस्टेंट ये गिवन होगी डाटा बुकलेट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और उसके बाद आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं मोल्स की। अच्छा, एक और चीज़ शायद, अच्छा हाँ, एक और मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, अनदर इक्वेशन, ये यहीं लिख देता हूँ, अनदर आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा बेटा, एक और इक्वेशन है, वो इक्वेशन है पी वी ओवर टी इज़ कांस्टेंट। ये भी उन तीनों लॉज से बनी है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उसके बाद वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इन तीनों को जो है वो एक जगह पर लिख कर जो है वो ये लॉ बना सकते हैं। कैसे, जैसे P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 और P1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 ओवर T2। ये चार्ल्स लॉ, मतलब ये वाला मैं पहला लिख रहा हूँ लॉ, ये वाला मैं दूसरा लिख रहा हूँ, एंड देन द थर्ड वन क्या होएगा वॉल्यूम और टी का, V1 ओवर T1। समझ आ रही है इस बात की, क्यों भाई, कि इक्वेशन कैसे बन रही है? अगर नहीं तो ये बहुत सिंपल बात है, यू कैन आस्क। ये तो हमने पहले बॉयज़ लॉ और ये उसका प्रेशर टेम्परेचर लॉ और चार्ल्स लॉ से ये बनाई। इन तीनों को ना आप कंबाइन कर दो, इन तीनों को एक में कंबाइन कर दो तो वो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, लाइक कंबाइन ऑल थ्री टुगेदर। और जो चीज़ें दो दफ़ा रिपीट हो रही हैं उसको एक दफ़ा लिखना है। तो P1 तो एक दफ़ा लिख दिया P1। अब V1 और V1 इसको भी एक दफ़ा लिख दिया।
डिवाइडेड बाय T1 उसको एक दफ़ा लिख दिया, और इसी तरह दूसरी तरफ करो तो P2 एक दफ़ा, V2 एक दफ़ा और T2 एक दफ़ा, तो ये, और यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि PV/T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा ये जो है ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, और ये भी कैलकुलेशन में यूज़ होगी। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है इट मस्ट बी इन केल्विन, यहाँ आपने इसको केल्विन में यूज़ करना है, और केल्विन में कैसे यूज़ करना है उसमें आप 273.15 ऐड कर दोगे। एक मोल होना चाहिए ना? नहीं, मोल्स एक मोल क्यों होना चाहिए? तो जिस तरह ऊपर इक्वेशन थी कि V इक्वल टू nRT, हाँ तो उसी से भी तो ये बन सकता है, लेकिन उसको फिर n तो 1 हाँ, लेकिन फिर R R कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, हाँ, और T फिर उधर से बना सकते हैं, या बिल्कुल यू आर राइट, 1 मोल के लिए कर सकते हैं। अब बेटा ये थोड़ा सा मोल्स की बात करते हैं, मोल्स की। मोल्स तो केमिस्ट्री में आप पढ़ के IGCSE में भी और A लेवल्स में भी, मोल्स का तो आपको आइडिया होगा कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ, डेफिनेशन, फार्मूला नहीं, डेफिनेशन, हाउ वी डिफाइन मोल्स। क्यों भाई अब्दुल्ला, किसी को नहीं मोल की डेफिनेशन आती? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, आगे। इक्वल टू एवोगैड्रोस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, ये कह सकते हैं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और कोई और डेफिनेशन नहीं है इसकी? कोई कार्बन के साथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, कुछ एनीथिंग लाइक दैट था तो सही, देख लो बेटा, केमिस्ट्री में नहीं आती तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे। एनीवेज, मोल ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हम वो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से कह दें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग सेम मास एज अ सब्सटेंस हैविंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल की जितनी मास होती है उसको हम जो है वो 1 मोल कहते हैं। अच्छा, अब मोल को n से लिखते हैं, और n क्या होता है, इसके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, तो लेट मी राइट डाउन द अदर फार्मूलाज एज वेल, या शायद यहाँ ऊपर लिखे हुए हों, नहीं, ओके। सो द फर्स्ट फार्मूला फॉर मोल्स, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ मोल्स के, मोल्स इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मोल्स के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, दैट इज n इक्वल mass of the substance over molar mass, and this mass of substance must be in grams, must be in grams, ठीक है, and this is mr, और mr molar mass, this is mass of 1 mole of substance। और ये वैसे अगर कोई, यही चीज़ हम न्यूक्लियर में भी यूज़ करते थे, तो न्यूक्लियर में mr क्या होता था, न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियर फिजिक्स में mr जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर होगा, जिस तरह यूरेनियम 23592 है तो उसका mr जो है वो 235 होएगा, लेकिन ये जो मास है ये हमें हमेशा ग्राम्स में लेनी है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन जो इसकी है दैट इज n इक्वल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। और जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड जो फॉर्मूला आता है दैट इज वॉल्यूम बेस, वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम, लेकिन ये हम फिज़िक्स में ये नहीं यूज़ करते, ये दो हम फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से। तो अगर हम इन दोनों को, मैं फर्स्ट 2 को कंबाइन करूं तो मैं ये लिखूंगा कि मोल्स जो हैं वो m ओवर mr इक्वल n ओवर na होगा। तो यहाँ से हमें कोई भी चीज़ निकालनी होगी तो वो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। यूजुअली वो आपको टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने के लिए कहता है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें na तो पता होता है, एवोगैड्रोस नंबर है, उसके बाद हमें mr भी पता होता है, और मास उसने हमें दी होती है कि इतने ग्राम मास है, तो उसमें बताओ आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं। तो इस फार्मूला के थ्रू आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें एक और हमने इक्वेशन बनानी है, लाइक वी हैव डन 2 इक्वेशंस फॉर आइडियल गैस, वन इज़ PV ओवर T इज़ कांस्टेंट एंड वन इज़ PV इज़ इक्वल टू स्मॉल n RT। अब हमें एक और इक्वेशन बनानी है, PV इज़ कैपिटल N K T, ठीक है। वो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? तो देखो बेटा, जो
हमें पता है कि ये जो n है दिस इज कैपिटल N ओवर एन ए, नंबर ऑफ मोल्स इन N ओवर एन ए। यहाँ से हम कैपिटल N निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये करते हैं कि जो हमने इक्वेशन लिखी हुई थी पी वी इज एन आर टी, जो अभी प्रूफ की थी पी वी इज एन आर टी, इसमें हम n की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं n ओवर एन ए। तो इसकी जगह n ओवर एन ए डाल दिया। अब ये जो r ओवर एन ए होता है ना, r ओवर एन ए, ये एक और कांस्टेंट होता है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नीचे लिखा हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ना, ये दो हैं, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम एस्ट्रोफिजिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये के है, ये हम आइडियल गैसेस के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि सम टाइम वो दोनों में बोल्ट्जमैन होता है ना, तो बंदा रॉन्ग वैल्यू जो है वो यूज़ कर जाता है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। दिस इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और ये डाटा शीट वैल्यू है। डाटा शीट के अंदर ये वैल्यू आपको गिवन होती है। तो कितनी इक्वेशंस हो गई आइडियल गैस की? 3 इक्वेशंस। 3 P1 V1 over T1 is P2 V2 over T2 1. Second is PV is small n capital R capital T, and third one is product of pressure and volume is capital N and capital T and into K, NKT। तो ये जो NKT है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की सेंस में है और PV is nRT जो है वो नंबर ऑफ मोल्स की सेंस में है। इन दोनों में n का मसला बनता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्मॉल n किसके साथ होता है, ठीक है। तो स्मॉल n हमेशा किसके साथ होगा? R के साथ होगा, जो मोलर गैस कांस्टेंट है। ओके, हाउ गैस एक्सर्ट प्रेशर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, द मॉलिक्यूल्स अंडरगो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इंपॉर्टेंट, विच प्रोड्यूसेस फोर्स। एंड न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि जो फोर्स है वो रेट फोर्स जो है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसको हम गैस प्रेशर कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ तो यहाँ है ना कि फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है, और फिर हमें पता है कि प्रेशर इज़ फोर्स ओवर पर यूनिट एरिया होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ इफ़ यू इनक्लोज अ गैस इन कंटेनर, सो हाउ इट एक्सर्ट्स प्रेशर। Okay, the last important thing is deriving an equation which is which is having several identities. The first one is pressure is equal to 1/3 density into c square. अब ये क्या है? P है गैस का प्रेशर, ठीक है। So this is we say gas pressure. अच्छा, उसके बाद जो है रो क्या है? रो इज गैस डेंसिटी। गैस डेंसिटी का मतलब है कि mass per unit volume. And then if we look upon this c square, this is a special thing, c square. So we say ये जो brackets होती हैं इसको mean कहते हैं या average कहते हैं, और c जो है ये एक designated symbol है गैस पार्टिकल की स्पीड के लिए। ज़रा वैसे v लिख सकते हैं, लेकिन गैस पार्टिकल ज़रा स्पेशल है तो हम उसके लिए c लिख देते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम c लिखते हैं, स्पीड v नहीं लिखते क्योंकि वो स्पेशल है, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। इसी तरह गैस पार्टिकल के लिए हम c लिखते हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मीन की सिंबल हैं या एवरेज की, मीन या एवरेज, और उसके बाद c जो है ये वेलोसिटी या स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल, और स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेते हैं वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो इसका एक नाम है, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर्ड स्पीड। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में। इसको कहते हैं मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स, और वो क्या है? ये है, ठीक है। सम टाइम खाली इसका नाम वो पूछ लेता है ये क्या चीज़ है, एक नंबर का पूछ लेता है कि ये है क्या, फिर नेक्स्ट आगे कैलकुलेट भी करवाता है, वो हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेटा एक तो ये हो गया, इसी का ना और भी हो सकता है, मतलब एक इसका होता है प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर, एक होता है इसका प्रेशर इज 1/3 nm ओवर वी सी स्क्वायर, एक इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज 1/3 nm सी स्क्वायर। तो ये इसके 3 फॉर्म्स हैं जिसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और तीनों का मीनिंग एक ही है। आई मीन हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ जो है वो ये जो डेंसिटी है इसको ही हमने ब्रेकअप किया है ना, और डेंसिटी की जगह हमने लिख दिया
टोटल मास और वॉल्यूम। टोटल मास में मैंने एन एम लिख दिया, एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एम मास ऑफ वन पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगले स्टेप में मैं वॉल्यूम को उधर ले गया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। तो बेसिकली एक नंबर 1 से ही फिर नंबर 2 और फिर उससे नंबर 3 बना है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो ये आपको प्रूफ करने के लिए कह सकता है। अभी हम इसका पूरे का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसका जाहिर सी बात है थोड़ा वो चैलेंजिंग टाइप है, लेकिन ये पूरा प्रूफ वो नहीं पूछता, बीच में से डाटा बता देता है और हमें बीच में से फिर आगे प्रूफ करने के लिए कहता है। लेकिन जाहिर है वी आर स्टडिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, तो हमने तो पूरे ही देखना है। तो बेटा ये समझो एक क्यूबिक एक बॉक्स है, इसकी जो वॉल की लेंथ्स हैं वो एल हैं, एल ईच, राइट। अच्छा, तो जिस तरह ये भी एल हो गई और हाइट, लेंथ विड्थ हाइट सेम है। इट इज़ फिल्ड विद आइडियल गैस, और ये जो पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं ना, ये लेट्स से आइडियल गैस पार्टिकल्स, और इनकी मास, एक की मास m है, m इज़ मास ऑफ वन पार्टिकल। और अभी ये नीचे एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। जिस तरह ये रूम कर लो, तो इस रूम में ये x एक्सिस है, वो वाली लाइन y एक्सिस है और ये ऊपर z एक्सिस है। तो इमेजिन करो ये रूम एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं। उन सब में से बहुत सारे हैं, मतलब गैस पार्टिकल्स तो बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं। हमने सिर्फ एक या दो को हाईलाइट कर लिया, तो मैंने एक को हाईलाइट कर लिया कि भाई हमने सिर्फ इसको देखना है बस, कि इसके साथ हो क्या रहा है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि वो इस आपके राइट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? आपके राइट की तरफ। और ये जो राइट वाली वॉल शेडेड है, इसको जाके उसने हिट करना है। और हम ये इमेजिन करेंगे, अज्यूम करेंगे कि रास्ते में कोई और गैस पार्टिकल नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और आया तो हिट करके वो लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो ये पार्टिकल सीधा जा रहा है। जब सीधा जा रहा है बेटा, तो इसने इसको हिट करना है यहाँ। जब हिट करना है, उसका मोमेंटम चेंज होना है, क्योंकि हिट करके वो वापस आएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन, गैस पार्टिकल्स अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन। वो गए, हिट करके वापस आ गया। तो अपॉन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हमने F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी लगाना है। फिर हमने एरिया वॉल का कैलकुलेट करना है। फिर देखना है कि ये तो एक है, तो इस जैसे बहुत सारे जा रहे होंगे इस वॉल की तरफ, तो एक की कैलकुलेशन करके उसको हम बाकी सब के ऊपर लगा देंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो प्रेशर आ जाएगा एक वॉल के ऊपर ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स। ठीक है। और फिर हम उस एक वॉल से फिर 6 वॉल्स के ऊपर उसको शिफ्ट करेंगे, जिससे हमें टोटल गैस प्रेशर हम निकाल सकेंगे, जो ये वाला P इज़ 1/3 रो C स्क्वायर होएगा। तो लेट्स डू दैट। ये तो एक रफ सा व्यू मैंने आपको बताया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूबिक बॉक्स है, फिर इसकी जो साइड्स हैं वो सारी सेम है L। उसके बाद हमने इसके अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, एक को चूज़ कर लिया, उसकी मास m है। Cx क्या है? C उसकी स्पीड है, और x का मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि जब 3D में वो मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। क्योंकि गैस पार्टिकल है ना। अब हम तो एक तरफ फ्लोर पे ही जा सकते हैं, हम हाइट तो गेन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। गैस पार्टिकल है, वो फ्लोर पे तो नहीं चलेगा, वो तो ज़ाहिर हर तरफ जा रहा होगा। तो गैस पार्टिकल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक x एक्सिस के अलॉन्ग, एक y एक्सिस के अलॉन्ग, एक z एक्सिस के अलॉन्ग। हमने कौन सा चूज़ किया हुआ है? सिर्फ x एक्सिस वाला। अच्छा, अब जब बेटा ये इधर आ रहा है, तो इसने आके ये वाली बात यहाँ पे है कि ये पार्टिकल है, आप ये बीच में यहाँ पे जा रहा है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट x के अलॉन्ग है, एक कंपोनेंट y के अलॉन्ग है और एक कंपोनेंट z के अलॉन्ग है। ओके, सो मेन चीज़ क्या होगी कि जब ये गैस पार्टिकल हिट करेगा तो पहला स्टेप क्या होगा? अपॉन हिटिंग द वॉल, अपॉन हिटिंग द वॉल पहला स्टेप क्या होना है? उसका मोमेंटम, मतलब हिट करने से पहले उसका कुछ मोमेंटम है, जब वो हिट करेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, और जब मोमेंटम चेंज होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ से उसके ऊपर वो एक फोर्स लगाएगा वॉल पे, और उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, राइट। और उस फिर फोर्स से हम प्रेशर जो है वो जनरेट करेंगे, चूँकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है। तो ये हमारी थीम होगी। गैस पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम है, वॉल आ गई, उसको हिट किया, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज क्यों होगा? हिट करने से, मतलब गैस पार्टिकल जा रहा है, हिट करने से मोमेंटम चेंज क्यों होगा? क्योंकि जब यूं मोमेंटम वेक्टर है, अगर वो वॉल की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये है, जब हिट करके वापस आएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, तो फिर मोमेंटम चेंज हो जाता है ना, बिकॉज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अच्छा, अब मोमेंटम को पहले हम देख लेते हैं। मोमेंटम देखो, मोमेंटम इज mv होता है। सो x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम क्या होएगा? mcx, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग उसकी स्पीड cx है, y एक्सिस के अलॉन्ग mcy और z एक्सिस के अलॉन्ग mcz होगा। ये उस एक पार्टिकल का मोमेंटम है। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे होएगा? चेंज इन मोमेंटम ऐसे होएगा, देखो पहले वो जा रहा है u वेलोसिटी से, जो मैंने अभी बताया आपको। जब हिट करके वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, जो -cx है।
मतलब जाते हुए प्लस सी एक्स है, वापसी पे माइनस सी एक्स है। क्यों? चूंकि डायरेक्शन चेंज हुई है उसकी। तो अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एम वी माइनस एम यू होता है ना। तो अब v क्या लगाओगे? माइनस सी एक्स, और u क्या लगाओगे? सी एक्स। तो जब दोनों माइनस होंगे तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? माइनस टू एम सी एक्स। अब ये इजी चीज़ है बेटा, ये ओ लेवल्स में भी होती है और एएस में भी आपने मोमेंटम में पढ़ी है कि जब भी कोई चीज़ हिट करके रीबाउंड होती है तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है। और कीपिंग इन माइंड ये इलास्टिक कोलिजन है। शुरू में हमने पढ़ा था कि गैस पार्टिकल्स कोलाइड इलास्टिकली, इट मींस दे डोंट लूज देयर स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, स्पीड सेम रहती है उनकी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंटम चेंज होता है। तो देखो एक ही पॉइंट देखना है कि यहाँ पे जो v है ना वो माइनस सी एक्स है, क्योंकि जाते हुए हमने पॉजिटिव लिया तो वापसी पे नेगेटिव लेंगे, तो ये माइनस सी एक्स है। v की जगह माइनस सी एक्स लिखा, u उसकी इनिशियल स्पीड थी जो प्लस सी एक्स, लेकिन ये माइनस फार्मूला वाला इसी तरह आ गया, तो यू गॉट माइनस टू एम सी एक्स। माइनस साइन यहाँ क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ फाइनल मोमेंटम, कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो अपोजिट टू ओरिजिनल है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है। ओके, लास्ट थिंग, फोर्स। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो बेटा ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये आप फोर्स की जगह लिख दो, तो आपके पास आ जाएगा माइनस टू एम सी एक्स ओवर डेल्टा टी। और उसके बाद हम बस इसको सम अप करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब हमने डेल्टा टी जो है ना उसको भी रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेल्टा टी भी है इस जगह, ये दिस इज डेल्टा टी। सो हाउ टू रिप्लेस डेल्टा टी? आई गेस टाइम इज अप। हम इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर ये थर्मोडायनामिक्स भी साथ करेंगे। मतलब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये दोनों हम पहले कर रहे हैं। ये नोट्स मैं अभी आपसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इसको आप जितना हमने आज पढ़ा है जाके थॉरोली एक दफ़ा जो है इसका रिव्यू लीजिएगा, ठीक है?